Hello students, in this lecture we will continue our discussion on formation of partial differential equation by eliminating arbitrary constant. Uh, we will just review it quickly. We have done it in previous lecture. For this, we have considered a relation in the variables x, y, z and in the arbitrary constants a and b. Here z is dependent variable, x and y are independent variables. A and b are arbitrary constants. We have to eliminate a and b from here. So for this, we have differentiated this relation partially with respect to x and partially with respect to y. Then we have three equations 1, 2 and 3. From these three equations, we can eliminate arbitrary constant a and b. Then we will get a partial differential equation of first order. This is partial differential equation as it contains p and q. P and q are partial derivatives. So by definition of partial differential equation, we get partial differential equations in the variables x, y and z and their partial derivatives. Now, if number of arbitrary constants are equal to number of independent variables, as in this case we have two arbitrary constants a and b and two independent variables x and y. In that case, we have found the partial differential equation is of first order. We obtain a first order partial differential equation. And what happens if number of arbitrary constants are more than independent variable, and if arbitrary constants are less than number of independent variable? We will discuss it here. Here is some remarks. If number of arbitrary constant is equal to the number of independent variable as in the previous case, then the elimination of constant usually shall give rise to one partial differential equation of first order. अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उस केस में हमें जनरली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी. In the second case, if number of arbitrary constants is less than the number of independent variables, then the elimination of constants usually shall give rise to more than one partial differential equation of first order. अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लेस होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी और एक से ज्यादा हमारे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है. ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ही हो, फर्स्ट ही होगा और एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो. And in the third case, if the number of arbitrary constants is more than the number of independent variable, then the elimination of constants usually shall give rise to a partial differential equation of order higher than 1. उस केस में जो हमारा ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, एक से ज्यादा होता है. जनरल केसेस में बात करें, जनरली ऐसा होता है. हर केस में ऐसा नहीं है, कई जगह एक्सेप्शंस भी मिल सकती हैं, बट जनरली यही बिहेवियर शो होता है. हम एग्जांपल से देखेंगे कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, उस केस में जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एक से ज्यादा ऑर्डर की आएगी. मींस हमें हायर डेरिवेटिव्स परफॉर्म करने पड़ेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए. तीन इक्वेशन से ही सिर्फ हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे. उस केस में हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दीज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन वन ऑर्डर की होगी. नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स. Example first. Form the partial differential equation by eliminating arbitrary constants a and
बी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। यहाँ हमें इक्वेशन गिवन है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एलिमिनेट किसको करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और हमारे को यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन है ए एंड बी। इस इक्वेशन में z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हमारे पास x एंड y, एंड दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जनरली इस केस में क्या रहता है, हमें जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो फर्स्ट ऑर्डर की बनती है। अब हम इस इक्वेशन को, मेथड क्या था, जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम पार्शियली पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन y के रिस्पेक्ट में, फिर इन थ्री इक्वेशन से हम चेक करेंगे कि वी कैन वी एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और नॉट। अगर कर सकते हैं तो वहां से हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। गिवन इक्वेशन इज दिस। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी हैव करली z बाय करली x इक्वल्स टू a इंटू एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 1। जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम x को ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब यहाँ पर हम इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे बी वाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। ओनली वी विल हैव करली z बाय करली x इक्वल्स टू a। नाउ we will differentiate this equation partially with respect to y। जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो बाकी सारों को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट वी विल हैव करली z बाय करली y इक्वल्स टू b, बिकॉज दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0। जब by को डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट b, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इन तीन इक्वेशन से हम a और b को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, we will get partial differential equation। When we substitute the value we have z equals to x into curly z by curly x plus y into curly z by curly y plus curly z by curly x whole square plus curly z by curly y whole square। इस इक्वेशन में जहां a और b प्रेजेंट थे वहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, a और b को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ 2 and 3। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h and k फ्रॉम द इक्वेशन दिस। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये हमारी इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एलिमिनेट किसको करना है, h एंड k को। अगर इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हमारे तीन कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं h, k एंड लैम्डा, बट यहाँ पर हमें h और k को एलिमिनेट करना है। इट मींस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, h और k। सिर्फ h और k को एलिमिनेट करेंगे, लैम्डा को एलिमिनेट नहीं करेंगे। और ये हमारी किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर with center h, k and 0 and radius lambda। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हम पहले इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वी हैव 2 into x minus h प्लस y को और k को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे वी हैव 2z into curly z by curly x, लैम्डा इज अगेन कांस्टेंट सो वी विल गेट 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आएगी जब हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x इज कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट टर्म इज y माइनस k होल स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 2 into y माइनस k, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 1। नेक्स्ट प्लस z स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे वी हैव 2z, z को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो करली z बाय करली y। अगेन लैम्डा स्क्वायर इज कांस्टेंट सो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट वी विल गेट 0। अब यहाँ पर हमें h और k को एलिमिनेट करना है, तो एक मेथड तो ये है, आप यहाँ से इस इक्वेशन से h की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे, या फिर हम थोड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली
x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से हम x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x माइनस एच विल बी माइनस करली z बाय करली x। Similarly, from equation 3 we can calculate the value of y minus k. y minus k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, we will get माइनस करली z बाय करली y। x माइनस h और y माइनस k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दे तो वहां से हमारे h और k एलिमिनेट हो जाएंगे। x माइनस h पर जब हम पुट करेंगे we will get z स्क्वायर इंटू करली z बाय करली x स्क्वायर। जब हम y माइनस k स्क्वायर पुट करेंगे मीन्स z स्क्वायर इंटू करली z बाय करली y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी, z स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जिसमें से हमने h और k को एलिमिनेट कर दिया है। एंड दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव प्रेजेंट है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। In the next lecture we will do some more examples related to this. Thank you.